Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, chapter 5 is over. The last topic of previous chapter was pedigree analysis. Now it's time to begin chapter 6. The name of chapter 6 is, as you all know, the molecular basis of inheritance. Actually, this chapter is related with the biochemical properties of genes, genomes and genetic material. So what we learn actually from this chapter one by one, let I summarize the overall points. Chemical property of genes we'll discuss in this video lecture and in this chapter. Biochemical properties of genetic expression, molecular structure of DNA, experimental evidences of genetic material, role and importance of genes and genomes. This will all discuss in this chapter. So this is very important chapter in point of view to understand the structure of our genetic material. That is, not only we study the structure of our genetic material, the chemical properties of genetic material and their uh, historical perspectives and the how do they discover in the different kinds of living organisms, we'll discuss in this video lecture. So this is very important chapter in point of view to understand the history of genetic material as well as the experimental analysis of genes and genomes. So first of all we need to learn whatever the next heading, that is your heading is genetic material. As you all know, the DNA is the genetic material of human being. So it may be the RNA in some viruses. So genetic material may be DNA or RNA, but all kinds of genetic material, whether they are DNA or RNA, has the specific criteria or a specific definition. So let I introduce the definition of genetic material. The biochemical substances which store the genetic information of biological properties of living being and tend to transfer it from generation to generation called genetic material. Biochemical substances may be the DNA or RNA. Actually the genetic material of all living beings are always the nucleic acid. It store the genetic information of the biological properties, keep in mind. So actually the genetic material is genes, keep in mind, it is all about the matter of genes. So let I give you the notes of related to genetic material, so let it note it in your copy. The genetic material in terms of genes were first discovered by Gregor John Mendel and the name given by William Johnson. Actually, genetic material, when we talk about the genetic material, then it is related to the genes only. So, note, don't be confused regarding the genetic material. Now, back to the properties of all kinds of genetic material. So, one by one, I will introduce about the different properties of genetic material. Here, I have a bunch of properties of genetic material. One by one, I will introduce about that. The first property is genetic material store information of biological properties. As you all know, genetic material has capacity to scan first of all from head to tail of each of the living being, and then it is store the each part of body design in them, and later able to store in the genes of the gametes of in terms of ova and in terms of sperm. So this is the first properties of genetic material. The second property is genetic material carry information of biological properties into generation to generation. Not only it is store the uh, genetic properties, keep in mind it also help to carry the information of genetic or properties as well as the biological properties to the next generation, and it also transfer to generation to generation. So जेनेटिक मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्टोर भी करता है और इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करके भी ले जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? जेनेटिक मटेरियल एबल टू मेक इट कार्बन कॉपीज. जेनेटिक मटेरियल स्टोर भी करता है, जनरेशन टू जनरेशन ले भी जाता है और एक कॉपी अपने पास भी रख लेता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, वो अपनी कॉपी करना जानता है. डीएनए की कॉपी करने की एबिलिटी को ही रेप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म इस चैप्टर में बताया जाएगा. नाउ चैप्टर टॉपिक 4 पे आ गए हैं, पॉइंट 4 पे. जेनेटिक मटेरियल एबल टू एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. जेनेटिक मटेरियल अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना जानता है. इफ जेनेटिक मटेरियल कैन स्टोर एंड कैरी द इंफॉर्मेशन एंड मेक देयर ओन कॉपी, then it do not have genetic material. Then genetic material should always have the property to express itself in form of protein. This should be the point number 4. Now point number 5 is
जेनेटिक मटेरियल आर ऑलवेज स्टेबल। देखो जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पे इफेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट से, तो डिग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल के पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल जो है स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, 6 पॉइंट पर जेनेटिक मटेरियल शो प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूटेशन फॉर इवोल्यूशन। जेनेटिक मटेरियल के पास एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि वो म्यूटेशन की प्रॉपर्टी को शो करे, टाइम टू टाइम अपने आप में चेंजेस लाए, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी डिजाइन चेंज हो जाए और अगले जनरेशन में उससे इवोल्यूशन भी हो, जिससे एडॉप्टेशन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मंकी टू ह्यूमन में आते हैं, मंकी का जेनेटिक मटेरियल अगर इवन कभी चेंज ना हुआ हो तो आज ह्यूमन बीइंग मंकी से इवॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के में टाइम टू टाइम चेंजेज होना बहुत ज़रूरी है, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो मेंडल्स के रूल को भी फॉलो करती है, यानी कि ये अच्छी तरह से जेनेटिक मटेरियल को पता होता है कि मेंडल्स के रूल क्या है, कौन उसमें डोमिनेंट है, कौन उसमें रिसेसिव है। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल शुड हैव द all kinds of properties related to the Mendel. So these are the 7 different points you must have to write about the genetic material in your copy, and this should be learned by you because it may ask in the examination what are the different property that you decide the given बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस आर जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि जो जेनेटिक मटेरियल आपके सामने है उसको कैसे आप प्रूव करेंगे कि वो जो सबस्टेंसेस आपके सामने है उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो जेनेटिक मटेरियल ही है। तो ये 7 पॉइंट्स आपके लिए हेल्प कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अब हम हेडिंग आपको डालना है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेडिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, लिसन, जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज बी न्यूक्लिक एसिड, राइट डाउन, जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज बी न्यूक्लिक एसिड, ऑलवेज न्यूक्लिक एसिड, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एग्जाम्पल दीजिए, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो अब आप जो है अगली हेडिंग डालिए कॉपी में, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, पूरा पूरा लिखना है आपको, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो लिख लो कॉपी में, आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द वायरसेस लाइक टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, लिख लो कॉपी में, मैं लिख दे रहा हूं, क्यूबी बैक्टीरियो फेज, PHASE, मैं स्पेलिंग में बोल दिया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, टीएमबी क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इबोला वायरस। सो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब आते हैं, आरएनए बेसिकली 2 टाइप होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, ये आपको बताया गया था, HIV में होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, HIV में। अब ये कोविड-19 के वायरस, कोरोना वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, ये होता है रोटो वायरस, एक ग्रुप है रोटो वायरस, एक फैमिली जिसको हम लोग रियो वायरस भी बोलते हैं, रियो वायरस, उस फैमिली में होता है। एग्जाम्पल इबोला, इबोला, EBOLA, इबोला। और ऐसे वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसको रिट्रो वायरस होते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रो वायरस। ठीक है, अभी मैं सही कर दे रहा हूँ स्पेलिंग ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। रिट्रो वायरस लिख लेंगे, RETRO, रिट्रो वायरस तो जानते ही हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड किस में होता है, HIV, उस कंपनी को बोलते हैं रिट्रो वायरस। डबल स्टैंडर्ड रोटो वायरस में होता है, एग्जाम्पल इबोला। ठीक है, अब नेक्स्ट की मैं बात करूं, एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई RNA इज
फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये एग्जाम में आता, बहुत क्वेश्चन आता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों है, ये आपको जानना है, समझना है। लिसन, सबसे पहला रीजन है कि आरएनए हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, आरएनए हैज़ वेरी सिंपल structure, and as you all know, after the earth evolution, the first organisms that has genetic material are always simple type, because organisms are simple, so their genetic material are simple, the first reason. Second, RNA always in living organisms are single stranded, it is mostly single stranded and very rare as double stranded. Third, RNA direct participate, RNA direct participate in protein synthesis, in protein synthesis। देखो डीएनए जो है, अगर प्रोटीन बनाना है, सपोज दैट ये प्रोटीन बना रहा है, तो डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है, यानी कि डीएनए भी आरएनए बनाता है। सनी डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पे डिपेंड रहता है, ठीक है। DNA, the protein synthesis machinery around revolve around RNA, yet DNA play important role because DNA decide which kinds of RNA will form, and then RNA able to synthesize the protein. This should be write by you in your own language. Listen, now next important points, RNA are the genetic material of lower organisms which has ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू कम ऑन अर्थ फर्स्ट, यानी आरएनए ऐसे लिविंग बीइंग का जेनेटिक मटेरियल है जो जिनका बॉडी डिजाइन सिंपल तो होता है, ये वो लोअर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उनके अर्थ पे आने के चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो सबसे पहले आए थे ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरसेस वगैरह, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए ये बताता है कि जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, अगला पॉइंट, it show the catalytic reaction to the more and more reactive. Listen carefully, the RNA show the catalytic reaction, so more reactive. RNA are less stable and more reactive. आरएनए कम स्टेबल होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। और डीएनए इसका उल्टा होता है, डीएनए क्या होता है, मच स्टेबल होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। सो डीएनए आरएनए आर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कुछ रीजन्स मैंने बताया, उसको आप पॉइंट आउट कर लेंगे एग्जाम में भी, जैसे आरएनए एक्ट एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट फाउंड इन दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू कम ऑन अर्थ, इसका अर्थ पे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड में होता है, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड में होता है, रेयरली डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये सब कुछ रीजन्स है। ये नॉन जेनेटिक मटेरियल भी पार्टिसिपेट करता है आरएनए, जैसे कैटालिटिक रिएक्शन में। ये कैटालिटिक रिएक्शन क्या है, ये नॉन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नॉन जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, अब आपको लिखना है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, काऊ, बफेलो, हायर प्लांट्स। सिंगल स्टैंडर्ड में लिख लो कॉपी में, 5X174 वायरस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एग्जाम में आता है। 5X174 वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ये 5X174 जो होता है हैज़ ओनली 2693 बेस पेयर, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है 2693 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे इसका डबल, 5386 क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये कुल कितने बेस पेयर्स का होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। और ये 5X174 क्या है,
ये भी बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज सब वायरस ही होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना, डबल स्टैंडर्ड का हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड में। अब डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो भी हम आप लिख लीजिए कॉपी में। क्या क्वेश्चन पूछता है, वाई डीएनए इज द स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। डीएनए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल क्यों लिखेंगे, इट मोस्टली फाउंड एज डबल स्टैंडर्ड एंड रियली एज सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। अब आगे नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीजन क्या है, इट हैज़ बोथ ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड बिटवीन गुआनिन टू साइटोसिन, द ट्रिपल बॉन्ड, and adenine to thiamine has double bond. So because of having double and triple hydrogen bond, DNA is stable, ठीक है। नेक्स्ट, thiamine provide extra stability, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द DNA has less OH group, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में सिर्फ पेंटोज शुगर का डिफरेंट होता है। यहाँ पे पेंटोज शुगर सिर्फ डीएनए में एच होगा, यानी कि फ्री ओएच ग्रुप कम होता है डीएनए में, ठीक है, और आरएनए में फ्री ओएच ग्रुप ज़्यादा होता है। सो क्या होता है, इट इज़ लेस प्रॉन टू हाइड्रोलाइज, द डीएनए इज लेस प्रॉन टू हाइड्रोलाइज। डीएनए क्या होता है, बहुत कम हाइड्रोलाइज होता है बिकॉज ऑफ हैविंग लेस ओएच ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डीएनए को स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। अब आप अगला जो हेडिंग है वो लिख लीजिए कॉपी में, मैं बोल दे रहा हूं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो क्लियर हो गया, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी अब आपको सिर्फ जो है न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर को पढ़ लेने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको जानना क्या है कि न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर है ना, जैसे न्यूक्लियोसाइड हुआ, न्यूक्लियोटाइड हुआ, फॉस्फेट ग्रुप हुआ, पेंटोज शुगर हुआ, तो उसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आप न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के साथ आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है उस लिंक से रिलेटेड सारा वीडियो आप देख डालिए। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो जीवन में कभी भी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल का नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आप डीएनए का स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जो न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, उसमें बॉन्ड क्या क्या बन रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको सिर्फ बेसिक प्लेटफॉर्म जो है, बेसिक डायग्राम जेनेटिक मटेरियल का बताएंगे, वो कैसे बनता है, बिना वीडियो देखे आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लिंक के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के, बायोमॉलिक्यूल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप जो है जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, उसके बायोमॉलिक्यूल्स की अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू।